ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے مگر خوبصورت گھر میں ایک آدمی رضوان اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ تینوں بے حد حسین تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام اسما، درمیانی بیٹی کا نام زینیا اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام انابیہ تھا، جو سب سے زیادہ حسین اور دلکش تھی۔ رضوان روزانہ جنگل سے جڑی بوٹیاں اور سبزیاں توڑ کر بازار میں بیچتا اور جو 4 پیسے ہاتھ آتے اس سے گھر کا خرچ چلاتا۔ ایک دن وہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی انابیہ کو اپنے ساتھ لے نکلا۔ وہ دونوں چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچے اور سبزیاں توڑنے لگے۔ اچانک بیٹی کی نظر ایک شاندار بینگن پر پڑی، جو نہ صرف موٹا بلکہ غیر معمولی طور پر بڑا اور چمکدار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لپک کر بولی، ابا، یہ دیکھیں، ایسا بینگن میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اسے توڑنے ہی لگی تھی کہ زمین کے اندر تھر تھراہٹ سی ہوئی، ہوا میں ٹھنڈک پھیل گئی اور اچانک ایک بونا نمودار ہوا اور بولا، تم نے میرے آقا کا دروازہ کیوں کھولا ہے؟ اب تمہیں اندر چلنا ہوگا اور وہی تمہاری سزا کا فیصلہ کریں گے۔ پھر وہ ان دونوں کو زمین کے اندر ایک غار میں لے گیا۔ وہ ایک وسیع کمرے میں پہنچے جس کی دیواریں سفید پتھر کی تھیں اور چھت سے چمکدار قطرے ٹپک رہے تھے۔ ایک دروازہ کھلا اور ایک سفید پرندہ اندر آیا۔ وہ دودھ سے بھرے پیالے میں نہایا، پھر پر جھاڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک نہایت حسین نوجوان میں بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ اس نے بونے کی طرف دیکھا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ حضور، انہوں نے ہمارا بینگن اکھاڑا تھا ہے اور غار کا دروازہ کھول دیا۔ باپ نے کہا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے حضور؟ میری بیٹی نے ایک اچھا بینگن دیکھا، اسے پسند آیا اور اس نے توڑ لیا۔ نوجوان کچھ دیر خاموش رہا اور انابیہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ ڈری سہمی اسے بہت حسین لگ رہی تھی۔ پھر وہ مسکرا کر مگر حکم دیتے ہوئے بولا، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو میں تمہیں قتل کر دوں یا تم اپنی بیٹی کی مجھ سے شادی کر دو، لیکن گھبراؤ مت، تم جب چاہو اس سے ملنے آ سکتے ہو۔ بوڑھا باپ پریشان ہو گیا، لیکن اب اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ نوجوان نے اسے ڈھیر سارے سونے کے زیورات دیے اور وہاں سے رخصت کیا۔ باپ نے بیٹی کو گلے لگایا اور الوداع کہا۔ جب بوڑھا آدمی وہاں سے چلا گیا تو نوجوان نے لڑکی سے نرمی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، انابیہ۔ نوجوان نے مسکرا کر کہا، تو سنو انابیہ، اب تم یہاں کی مالکن ہو، اور اسے وہاں کی تمام چابیاں دے دیں۔ دیکھو انابیہ، تم یہاں جیسے چاہو رہ سکتی ہو، لیکن کبھی میرا نام جاننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گی۔ انابیہ نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن وہ ابھی بھی غار کی ویرانی کو دیکھ کر گھبرائی ہوئی تھی۔ نوجوان اس کی بے چینی سمجھ گیا۔ پھر وہ اسے غار کے ایک راستے سے جو شاہینوں کے خوبصورت پروں سے بنا تھا باہر لے گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک شاندار محل کھڑا ہے۔ ملازمین نے اسے خوش آمدید کہا۔ وہ اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ انابیہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک دن جب نوجوان باہر گیا ہوا تھا، انابیہ کی دونوں بہنیں اسے ملنے آ پہنچیں۔ پہلے تو وہ شاندار محل دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ انابیہ نے انہیں لذیذ کھانا پیش کیا۔ جب بہنوں نے اس سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو انابیہ نے کہا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، کیونکہ اس نے نوجوان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرے گی کہ وہ کون ہے۔ لیکن جب بہنوں نے اسے اکسایا تو وہ ان کی باتوں میں آ گئی۔ جب پرندہ واپس آیا اور نوجوان کی شکل اختیار کر گیا تو انابیہ نے خود کو اداس اور بجھا بجھا سا بنا لیا۔ نوجوان نے پوچھا، کیا بات ہے؟ انابیہ بولی، کچھ نہیں۔ بہتر ہوگا تم مجھے بتا دو۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں پریشان کیوں ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کا نام جاننا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے اسے بتایا کہ یہ اس کے لیے بہت برا ثابت ہوگا، لیکن اس نے نام جاننے کی ضد کی۔ چنانچہ اس نے اسے زمین پر سونے کے تشت رکھنے کو کہا اور اپنے پاؤں دھونے لگا۔ انابیہ، کیا تم واقعی میرا نام جاننا چاہتی ہو؟ ہاں، اور پانی اس کی کمر تک آ گیا
क्योंकि वो एक परिंदा बन चुका था और तश्त में बैठ गया था। फिर उसने उससे दोबारा वही सवाल पूछा और उसने दोबारा हाँ में जवाब दिया और पानी उसके मुंह तक आ गया। अनाबिया, क्या तुम वाकई मेरा नाम जानना चाहती हो? हाँ हाँ हाँ। तो फिर जान लो कि मुझे मोहब्बत का बादशाह कहा जाता है। और ये कहते ही वो गायब हो गया और तश्त और महल भी इसी तरह गायब हो गए और अनाबिया ने खुद को एक खुले मैदान में तन्हा पाया जहां उसकी मदद करने वाला कोई इंसान न था। उसने अपने नौकरों को पुकारा लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो चलती रही। दिन गुजरते गए, रातें ठंडी होती गईं और उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही है। रात का वक्त था। वो एक सुनसान मैदान में पहुंची। फिर उसका दिल बैठने लगा और ये ना जानते हुए कि क्या करे, वो रोते हुए पुकारने लगी, आह मोहब्बत के बादशाह, तुमने जो कहा वो कर दिखाया। तुम मुझसे सोने के तश्त में गायब हो गए और अब आज रात इस बेचारी बदकिस्मत को कौन पनाह देगा? जब वो ये अल्फाज अदा कर चुकी तो एक डायन नमूदार हुई और बोली, बदबख्त, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भतीजे को ढूंढने निकलने की? वो उसे खाने ही वाली थी कि उसे अन्नाबिया की काबिले रहम हालत पर तरस आ गया। उसने रात उसे अपने घर पनाह दे दी और सुबह उसे रोटी का एक टुकड़ा देकर बोली, जाओ, जंगल के जुनूब में मेरी बहन यानी तुम्हारी सास रहती है, उसके पास जाओ। वही तुम्हें मोहब्बत के बादशाह के बारे में बता सकती है, लेकिन ध्यान रहे वो एक खतरनाक डायन है। जब वो वहां पहुंची तो उसने फिर फरियाद करते हुए मोहब्बत के बादशाह को पुकारा और मोहब्बत के बादशाह की बहन नमूदार हुई और बोली, अनाबिया, जब तक मेरी माँ बाहर है ऊपर आ जाओ। उसने अपने बालों की चोटियां नीचे लटकाईं और उसे ऊपर खींच लिया। फिर उसने उसे कुछ खाने को दिया। इतने में उसकी माँ वहां आ गई। वो बोली, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? अनाबिया ने डरी हुई आवाज में कहा, मैं मोहब्बत के बादशाह की बीवी हूँ और उसे ढूंढने आई हूँ। डायन ये सुनकर गुस्से से आग बगोला हो गई। वो उसे खाने ही वाली थी कि उसकी बेटी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो वो घर छोड़कर वहां से चली जाएगी। डायन बोली, ठीक है, अगर तुम मेरा ये खत मेरी सहेली तक पहुंचा दो तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे को पालोगी। अनाबिया ने रजामंदी का इजहार किया। बेचारी अनाबिया खत लेकर वहां से रवाना हुई और नीचे उतरकर उसने खुद को एक मैदान के बीचों बीच पाया। वो रोने लगी और मोहब्बत के बादशाह को पुकारने लगी। अचानक मोहब्बत का बादशाह नमूदार हुआ और बोला, देखो, तुम्हारे तजस्सुस ने तुम्हें इस मकाम तक पहुंचा दिया है। बेचारी, जब उसने उसे देखा तो वो जमीन पर गिर गई और रोते हुए अपनी गलती की माफी मांगने लगी। बादशाह को उस पर तरस आ गया और उसने कहा, अब गौर से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। इस सफर में तुम्हारा सामना खून के एक दरिया से होगा। दरिया से पानी पीकर उसकी तारीफ करना, तनूर से रोटी खाना और महल पहुंचकर कुत्तों को रोटी देना, सीढ़ियों से जाले हटाना और देव के गोश्त के टुकड़ों को साफ कर देना। जब तुम ये कर लो तो अंदर जाना और मेरा खत मेरी माँ की सहेली को दे देना। जब वो तुम्हें अंदर बुलाना चाहे तो मेज पर रखा एक छोटा सा डब्बा छीन लेना और भाग जाना। ध्यान रखना कि जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है वो सब करना, वरना तुम कभी भी वहां से जिंदा बचकर नहीं निकल पाओगी। फिर वो वहां से गायब हो गया। अन्नाबिया चलते चलते एक खून के दरिया के पास पहुंची। उसने अपने हाथ में कुछ पानी लिया, उसे पिया और बोली, अरे वाह, ये पानी कितना मीठा है। ये कहते ही उसने खुद को एक वीरान जगह पाया जहां एक तनूर में बहुत सी रोटियां पक रही थीं। उसने वहां से एक रोटी ली, उसे खाया और बोली, वाह, कितनी लजीज रोटी है। ये कहकर वो आगे बढ़ी और एक महल के दरवाजे पर पहुंची जिसकी रखवाली 2 कुत्ते कर रहे थे। उसने उन्हें रोटी दी, फिर एक झाड़ू लेकर सीढ़ियों से जाले साफ किए। फिर वो आगे बढ़ती गई। रास्ते में उसे 2 देव मिले जिनके कंधों पर गोश्त के गंदे टुकड़े थे। उसने एक ब्रश लिया और गोश्त के टुकड़ों को साफ किया और आगे बढ़ी।
फिर वो एक अजीब दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और डाइन को खत दिया। जब डाइन खत पढ़ रही थी तो अनाबिया ने मेज पर रखा डब्बा उठाया और अपनी जान बचाने के लिए भागी। जब डाइन ने अपना खत पढ़ लिया तो उसने पुकारा, अनाबिया, अनाबिया। जब उसे कोई जवाब न मिला तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने गजबनाक होकर चीखते हुए कहा, सीढ़ियों, उसे निगल जाओ। सीढ़ियों ने जवाब दिया, जब से मैं सीढ़ियां बनी हूं, तुमने कब मुझे साफ करने की जहमत की? अनाबिया आई और उसने मुझे साफ किया और उन्होंने उसे जाने दिया। डाइन ने तैश में आकर कहा, दियो, उसे कुचल दो। जब से हम देव बने हैं, तुमने कब हमारा खाना साफ करने की जहमत की? अनाबिया आई और उसने हमारा खाना साफ किया। फिर गजबनाक डाइन ने कुत्तों को उसे नोच खाने, भट्टी को उसे जलाने और दरियाओं को उसे गर्क करने का हुक्म दिया। लेकिन उन सबको अन्नाबिया की मेहरबानी याद थी और उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने से इनकार कर दिया। इस दौरान अन्नाबिया अपने रास्ते चलती रही और आखिरकार उसे ये जानने का तजस्सुस हुआ कि वो जो डब्बा ले जा रही है उसमें क्या है। चुनाचे उसने उसे खोला और उसमें से बहुत सी छोटी छोटी कठपुतलियां बाहर आ गईं। कुछ नाचने लगी, कुछ ने गाना गाया और कुछ ने साज बजाए। उसने कुछ देर उनके साथ अपना दिल बहलाया, लेकिन जब वो आगे जाने के लिए तैयार हुई तो वो छोटी मूर्तियां वापस डब्बे में जाने को तैयार न थीं। रात हो गई। उसने दोबारा सहमी हुई आवाज में मोहब्बत के बादशाह को पुकारा। फिर उसका शौहर नमूदार हुआ और बोला, ओह, तुम्हारा तजस्सुस तुम्हारी मौत का सबब बनेगा। और उसने कठपुतलियों को दोबारा डब्बे में जाने का हुक्म दिया। अब मैं चलती हूँ। जब डाइन ने उसे देखा तो बोली, तुम्हारी ये खुशकिस्मती मेरे बेटे मोहब्बत के बादशाह की मरहूने मिन्नत है। वो बेचारी अनाबिया को खाने वाली थी कि उसकी बेटी ने उसे रोक दिया और बोली, अम्मा, वो तुम्हारे लिए डब्बा ले आई है, तुम उसे क्यों खाना चाहती हो? फिर वो उसे मोहब्बत के बादशाह के आलीशान महल में ले आई। डाइन ने गुस्से से अन्नाबिया की तरफ देखा और बोली, बहुत खूब, तुम मेरे बेटे मोहब्बत के बादशाह के साथ रहना चाहती हो, तो फिर ये 6 गधे लो और जाओ उन्हें परिंदों के परों से भर कर लाओ। अन्नाबिया नीचे उतरी और अपनी पुरानी फरियाद करते हुए इधर-उधर भटकने लगी। जब उसका शौहर नमूदार हुआ तो अन्नाबिया ने उसे सारा माजरा सुनाया। उसने सीटी बजाई और परिंदों का बादशाह जाहिर हुआ। उसने तमाम परिंदों को हुक्म दिया कि वो आएं और अपने पर गिराकर 6 बिस्तरों को भर दें और उन्हें वापस डाइन के पास ले जाएं। जब डाइन ने परिंदों के परों से भरे हुए गधे देखे तो वो बोली, जरूर इसमें भी मेरे बेटे ने तुम्हारी मदद की है। ताहम वो गई और उसने उन 6 गधों से अपने बेटे का बिस्तर लगाया और उसी दिन उसने उसकी शादी पुर्तगाल के बादशाह की बेटी से करवा दी। फिर उसने अनाबिया को बुलाया और उसे ये बताते हुए कि उसके बेटे की शादी हो चुकी है, उसे शादी के बिस्तर के सामने 2 जलती हुई मशालें पकड़कर घुटने टेकने का हुक्म दिया। अनाबिया घुटने टेके मशालें पकड़े रो रही थी। जब मोहब्बत के बादशाह ने ये देखा तो उसने बहाने से नई दुल्हन को मीठे अंदाज में कहा, देखो तो बेचारी कितनी बीमार लग रही है, तुम थोड़ी देर ये मुशलें पकड़ो, तब तक मैं दूसरी खादमा को बुलाता हूँ। जैसे ही मलका ने मशालें अपने हाथों में ली, जमीन फटी और उसे निगल गई और बादशाह अनाबिया के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जब डायन को ये सब पता चला तो उसने अपने हाथ अपने सर पर बांध लिए और ऐलान किया कि अनाबिया का बच्चा उस वक्त तक पैदा नहीं होगा जब तक कि वो अपने हाथ नहीं खोलती। तब मोहब्बत के बादशाह ने एक जनाजा गाह बनवाई और खुद को उस पर यूं लिटा दिया जैसे वो मर गया हो, और तमाम घंटियां बजवाएं, लोगों ने शोर मचा दिया कि मोहब्बत का बादशाह कैसे मर गया। डाइन ने ये सुना और पूछा, ये शोर कैसा है? उसकी बेटी ने उसे बताया कि उसका भाई डाइन की बेहिस्सी की वजह से मर गया है। जब डाइन ने ये सुना तो उसने अपने हाथ खोल दिए और बोली, मेरा बेटा कैसे मरा? उसी लम्हे अन्नाबिया के यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ।
जब डाइन ने ये सुना तो उसके दिल की रग फट गई और वो मर गई। फिर मोहब्बत के बादशाह ने अपनी बीवी और बहन को साथ लिया और वो सब खुशी और इत्मीनान से रहने लगे।